Good morning to all of you. Today we will discuss the structure of fructose. In previous class, I already discussed about the glucose and some other carbohydrates. Glucose, like structure of glucose, and there are two types of structures of glucose. First one is non-cyclic and the second one is cyclic structure. So cyclic, we see the Haworth projection formula of the glucose. So here again we will discuss about the structure of fructose, and its cyclic means open chain and the cyclic structure. Cyclic structure contain two type of structure. First one is alpha D and the second one is beta D structure, means fructose structure. So here the molecular mass of fructose is C6H12O6, C6H12O6, and also the molecular formula of glucose is also C6H12O6, but the functional group present in both the compound is different. Aldose contain aldehyde group present at carbon number 1, and the fructose contain ketone group at carbon number 2 in its structure. So here the molecular formula of fructose is C6H12O6, similar to glucose, but fructose contain ketone group at carbon number 2. So here the fructose contain two types of structure like glucose. First one is open cyclic structure, means open chain structure, and another one is cyclic structure. So open chain structure means like this: CH2CO, C, CH2. So here to draw the structure of fructose, again we remember the trick, means code word for the position of hydroxyl group in the ketone. So in previous class already we remember that alpha alpha beta alpha in the structure of glucose. So here again the alpha alpha beta alpha is applicable for the structure of glucose. So here the number of carbon atom in fructose is 6, and the last carbon contains CH2OH, means primary alcohol, and all three means these three alcohols containing secondary alcohol, secondary type alcohol. So here suppose this is the carbon number 1 according to us, but according to functional group the carbon number will be here 1. So according to us the carbon number 1 is here, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5, 6. So here the formula means trick code word for the structure of to show the structure of glucose or fructose, that is alpha alpha beta alpha. Alpha, this represent, this show the side of hydroxyl group present in right side of the carbon atom in the structure of fructose and also glucose. Alpha means hydroxyl group at right side, beta means hydroxyl group at left side, and again hydroxyl group present in right side. So here this alpha means ketone group, and ketone also contain oxygen atom. So here the alpha means carbon number 1, carbon number 2. Here alpha started from carbon number 2. So carbon number 2, this is a carbon number 2. Here alpha means position of hydroxyl group. So alpha means right side. Again the carbon number 3 means again alpha. So here again the hydroxyl group present in the right side of the carbon atom. Then beta means hydroxyl group present in left side. Then again alpha means ketone group, means oxygen. So ketone group present in the alpha side, means right side. And finally the CH2 contain hydroxyl group CH2OH. तो इस तरीके से बनाएंगे इसका फार्मूला, कोड वर्ड हमें याद है अल्फा अल्फा बीटा अल्फा
इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब साइक्लिक बनाएंगे तो काउंटिंग हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा, नॉन साइक्लिक बनाएंगे तो हमारा काउंटिंग नीचे से जाएगा 1 2 3 4 5। तो अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा ये हमारा नॉन साइक्लिक में है। साइक्लिक में सीक्वेंस हमारा वही रहेगा लेकिन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो साइकिल यहाँ से बना लेगा तो हमारा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा करके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा फ्रक्टोज का। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ फिर से दो कंडीशन आएगा। जैसे ग्लूकोज में OH था, मेन जो हमारा कार्बन एटम था, means aldehyde group contain one oxygen and one hydrogen atom, and oxygen converted into hydroxyl group. So there will be the two condition. First one is the hydroxyl group present in the right side, means inside the cycle, and the second one is outside of cycle. तो यहाँ भी देखेंगे कि हमारा जो CH2O और OH है ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कीटोन वाले कार्बन से दो ग्रुप होगा हमारा जुड़ा हुआ, एक ये वाला ग्रुप होगा ओवरऑल और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद ये। तो एक कंडीशन होगा जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अंदर होगा, सेकंड वाले कंडीशन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बाहर होगा। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हम अंदर लिए हैं, मीन्स राइट साइड लिए हैं, और राइट साइड का मतलब होता है अल्फ़ा। ठीक है, तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा डी। ठीक है, डी मीन्स डेक्सट्रो रोटेटरी है ये। ठीक है, और अल्फ़ा मीन्स ये राइट साइड। और अगर OH बाहर चला जाए, CH2OH अंदर आ जाए, तब ये हो जाएगा हमारा बीटा फॉर्म। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनेगा कीटोन का, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और जब ये वाले केस में आएंगे साइकिल स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको एक साइंटिस्ट ने शो किया था जिसका नाम था हावर्थ, मीन्स एक स्ट्रक्चर शो किया था जिसको बोला गया था हावर्थ स्ट्रक्चर या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। सो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कार्बन लिंक है, तो ये लिंक को हम इस तरीके से शो कर दिए हैं। मीन्स ये वाला कार्बन होगा जो कि डायरेक्ट इस कार्बन एटम से अटैच होगा, तो इस कार्बन से हम को इस तरीके से शो कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि हम इस तरीके से लेंगे और बना देंगे, लास्ट वाले में CH2OH रहेगा, CH2OH। ठीक, इसको मानेंगे कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये वाले को लेकर के अगर ये वाला साइकिल बनाते हैं तो देखते हैं कि होता क्या है। ये हम लोग इस तरीके से अल्फ़ा फॉर्म कर लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये CH2OH बाहर है मतलब वो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ऊपर साइड में जाता है। अगर यही CH2OH अंदर होता तो हम CH2OH को नीचे साइड लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड में OH है मतलब हम यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बीटा आएगा, फिर अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा तीन ही कार्बन है मेन, जहाँ पे OH को हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसको बाहर कर देंगे, हमारा कार्बन नंबर 1 कौन सा होगा, ये होगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, और साइकिल के हिसाब से ये होगा, लेकिन हम यहाँ से मान के लेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2। सेकंड नंबर के कार्बन से OH जुड़ा जो कि नीचे साइड है तो नीचे साइड रख दिए। थर्ड में देख रहे हैं बीटा है, बीटा मीन्स ऊपर होता है तो यहाँ पे ऊपर में रख दिए OH। अगले वाले कार्बन पे OH राइट साइड में है मतलब नीचे साइड, और अगले वाले कार्बन से यहाँ भी OH रहेगा। ठीक है, तो अगले वाले कार्बन से ये लिंक है वो इस तरीके से वो लिंक कर दे। उसके बाद ये हमारा क्या है, साइकिल के बाहर है, साइकिल के बाहर मतलब हमेशा ये ऊपर साइड में ही रहेगा, नीचे में क्या आ जाएगा इसका H। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा ये, इसका नाम है अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, अब फ्यूरेन इस स्ट्रक्चर को देख करके लिया गया है कि 1 2 3 4 4 कार्बन के साथ अगर एक ऑक्सीजन लिंक है, तो जैसे हम पायरोन को देखे थे वैसे ये फ्यूरेन का है, तो फ्यूरेन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्यूरेनोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा। और बीटा के लिए क्या करेंगे कि जस्ट इसी को कार्बन नंबर 1 वाले को डिफर कर देंगे,
मीन्स यहीं पे देख रहे थे कार्बन नंबर 2 है, तो ये भी हमारा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे ही OH का जो कन्फिगुरेशन है डिफर है। ठीक है, तो जस्ट इसी को पलटी मार देंगे इधर, OH को जो बिलो साइड है, नीचे साइड है, उसको ऊपर कर देना है, और जो ऊपर है CH2OH उसको नीचे रख देना है। तो इस तरीके से रख देंगे तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हावर्थ रिएक्शन फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर। और अगला देखते हैं हम एनोमर। ठीक है, तो एनोमर ये दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम ग्लूकोज को लेके बनाएंगे। ठीक है, एनोमर को डिफाइन करेंगे ग्लूकोज को लेकर के। तो ग्लूकोज में हमारा ये वाला कार्बन नंबर 1 कहलाता था। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, आइसोमर्स मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। कि उसमें स्ट्रक्चर जो था कि एटम का जिस तरीके से कन्फिगुरेशन था कि कौन नीचे है कौन ऊपर है, बस वही डिफर रहता था, वो भी किसी एक पोजीशन पे, किसी एक कार्बन पे। तो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज हैविंग डिफर इन द कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 8C1 कॉल्ड एनोमर। ठीक है, या फिर C1 कॉल्ड एनोमर, ये भी लिख सकते हो। तो कोई भी आइसोमर्स मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जनरली ये लोग। तो यहाँ पे देखो OH नीचे में है, OH ऊपर में, बाकी सभी कार्बन में जो कन्फिगुरेशन था सेम है। तो सिर्फ एक ही कार्बन पे, तो ये ग्लूकोज के केस में ये डेफिनेशन बनाया गया है। तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे जो डिफरेंस था कीटोन के केस में कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ग्लूकोज यूज किया हूँ, इसीलिए कार्बन नंबर 1 मैं यूज किया हूँ। अगर यहाँ पे फ्रक्टोज यूज करता तो मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 लिखता ये वाली जगह पे। तो ग्लूकोज इसलिए कार्बन नंबर 1। सो द डेफिनेशन ऑफ एनोमर विल बी द आइसोमर्स of glucose having differ in the configuration of hydroxyl group 8C1 means carbon number 1 called anomers, and their structures are known as anomeric structures. Next point is disaccharide. So in previous class I already discussed about disaccharides, means the classification of carbohydrate. There will be the one point, that is disaccharide. So disaccharide means carbohydrates which gives two same or different monosaccharides are known as disaccharide. And in disaccharides the monosaccharides are joined together by glycosidic linkage. So here the definition can be asked. तो डाइसेकेराइड का यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल लिया गया है। देयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ डाइसेकेराइड लाइक सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा. So one by one we will discuss. So first of all we will discuss the glycosidic linkage. And the glycosidic linkage is a link by which two monosaccharides are joined together. तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का डेफिनेशन देखेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑक्साइड लिंक बाय विच टू मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय द लॉसिंग ऑफ वाटर इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये बाय द होगा कि वाटर को लूज करने के बाद जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाते हैं तो उसी लिंक को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो यहाँ पे देखेंगे जैसे दिया हुआ है, ये एक मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, इनके साथ सुक्रोज, क्योंकि हम सुक्रोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो मैं एरिया यहाँ पे लिया हूँ इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच विल रिटन हियर. और ये था हमारा अल्फ़ा डी मतलब यहाँ से OH नीचे रहेगा, और ये बीटा डी जहाँ पे OH हमारा ऊपर रहेगा. तो
ये था हमारा सुक्रोज के बारे में। और देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है क्या क्या होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वन क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम हियर, दैट इज़ द राइट द नेम ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट का नाम लिखिए करके। तो हमें ये वाला नाम देना पड़ेगा। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के दो ही हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है सुक्रोज के। सुक्रोज चूँकि डाइसैकेराइड है इसलिए दो ही प्रोडक्ट देगा, दो मोनोमर ही देगा। उसके बाद है ग्लूकोज के बारे में सब कुछ पॉइंट दिया गया यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सुक्रोज, दैट इज़ इट इज़ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है कि ये जो हमारा सुक्रोज है शुगर है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंक जो बनता है ये C1 और C2 के बीच में बनता है। तो ये था हमारा सुक्रोज। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माल्टोज के बारे में। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे माल्टोज और लैक्टोज के बारे में, जो कि हमारा डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।